just click on the subscribe button and hit the bell icon to know when I'm online. Happy watching! Hey guys, hello beautiful people. Thank you so much for watching my channel. I am Fatma Khan Sharif and welcome back to Fatistan. So today is day 24th of Ramadan. कल ही हम लोग लंदन सेंट्रल मॉस्क गए थे, फिर बहुत बारिश होने लगी। बाद में हम सही से शॉपिंग भी नहीं कर पाए। We thought that we'll do Eid shopping but it couldn't happen because of the rain. फिर रमदान लाइट्स भी सही से enjoy नहीं कर पाए। घर पहुंचते पहुंचते 11:30 समथिंग हो गया। फिर उसके बाद सहरी के लिए मैंने खाना नहीं बनाया था और इंडिया तो है नहीं कि जल्दी से स्विगी कर लो। घर आके मैंने जल्दी से कुछ बनाया एंड वी वर टॉकिंग क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट भी आए हुए हैं। तो फिर आज उनका हमारे साथ पहला रोज़ा है, तो सुहर करके अब दोनों मतलब विद माई हस्बैंड दोनों बाहर गए हुए हैं। सो आई थॉट कि चलो आज, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन हमारे मॉस्क में इफ्तार होता है। सो लाइक रियली गुड इफ्तार। सो दे बोथ विल बी गोइंग देयर फॉर इफ्तार एंड मेरा भी आज रोज़ा है। सो आई विल बी breaking my fast at home. लेकिन I'm going to prepare, I'm just a bit confused whether I shall prepare कीमा पुलाव और कीमा आलू का लाइक सालन जो चावल के साथ भी खा ले और सुबह रोटी के साथ भी सहर में खा ले, और कीमा पुलाव तो क्या, आई एम जस्ट कंफ्यूज। लेट मी डिसाइड ऑन दैट। तो उन दोनों में से जो भी रेसिपी होगा आई एम गोइंग टू अपलोड दैट फॉर यू गाइज फॉर श्योर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नो interested I fumble a lot. Okay, so if you are interested to know, please do keep watching and make sure you give it a big fat thumbs up. Do not forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will know whenever I am online. बच्चे को ऐसे सिखाते सिखाते ना अब बात भी ऐसी होने लगी। Alright, so let's get started. सबसे पहले I have switch on the gas, put the vessel on and pour some oil because I have to make the barista. So I have sliced 3 medium-sized onions and I'm just putting it into the vessel and I am going to fry it until light golden brown in color, and once it is done I'm going to take it out and spread it on the tissue paper, and I'm going to use the back of the spoon to spread it even more because otherwise वो अपने ही गर्मी में खुद और ज़्यादा पक के वो और ज़्यादा brownish हो जाएगा. So likewise I have spread it out और उसके बाद I'm going to take out the excess oil from the vessel because I don't like to cook everything in the floating river of the oil. So I'm going to take out the excess oil and थोड़ा बहुत मैंने vessel में रहने दिया because then I have to cook as well. So उसके बाद मुझे डालने हैं खड़े गरम मसाले. So raw garam masala which includes some bay leaves, green cardamom, black cardamom, cloves, cinnamon stick, mace, nutmeg, some zira, black pepper, वो सब डाला और कीमा मैंने धो के रखा था. So I have put the keema also. So I am sauteing it, both the keema and the garam masala together in a very little oil that is just sticking around in the vessel. And I have also added some bones and some big chunks of meat क्योंकि वो खाते टाइम ना अचानक से एक surprise element जैसा आता है, so which I like in my keema. And bones gives all the flavor. So we have to cook it until the water from the keema dries out completely. उसी के बाद हम सारे मसाले और जो जो चीज़ ऐड करनी है वो डालेंगे. I've still not decided what I'm going to cook. Depending upon how much keema is left after cooking, I'm going to decide whether I have to put the rice on it or I'll just make a salan out of it or leave it as it is. So गोश्त और बोन्स अभी तक गले नहीं है. What you can do, you can put whistle गोश्त and bones के लिए अलग से भी, and you can add those with the यखनी to make the cooking procedure easier and faster. Otherwise हम जितने भी मसाले, दही, टमाटर, पानी वगैरह डालेंगे प्लस चावल उबालेंगे उसमें ये बन जाना चाहिए. तो इसके बाद मैंने डाला 1 टीस्पून फुल ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो 1 टेबल स्पून, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक. सो आफ्टर दैट आई हैव जस्ट मिक्सड एवरीथिंग अप वेल. और फिर उसके बाद बारी आती है हमारी बरिस्ता की. तो जितने भी अनियंस मैंने फ्राई किए थे उसमें से मैंने थोड़े बचा लिए जो पुलाव के ऊपर मैं गार्निश करूंगी. यस, आई हैव डिसाइडेड टू मेक पुलाव नाउ. तो बाकी के मैंने अनियंस उसमें डाल दिए हैं. डाल के मैंने अच्छे से सौटे किया. मैंने पहले अनियंस इसलिए नहीं डाला क्योंकि कीमा बनने में टाइम लगता है और अनियंस ऑलरेडी बन चुके थे. अगर मैं दोनों साथ में डालती देन इट वुड हैव ओवरकुक द अनियंस. तो अभी ही थोड़े बहुत ओवरकुक लग रहे हैं अनियंस, बट दिस स्टेज इज स्टिल फाइन. फिर इसके बाद मैं डालूंगी इसमें सूखे मसाले, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर. इफ यू वांट यू कैन ऐड जीरा पाउडर आल्सो व्हिच आई हैव स्किप्ड. उसके बाद मैंने डाला सॉल्ट और मैं अब हाथ से ही 1 फुल टोमेटोज चॉप करके और स्लाइस करके डालूंगी. और इसके बाद मैं डालूंगी योगर्ट. आप दही भी डाल सकते हैं और यू कैन बाय द नेचुरल योगर्ट, बट आई एम pouring ग्रीक योगर्ट क्योंकि मैं हमेशा वही डालती हूँ. उससे खाने में क्रीमी और बहुत रिचनेस, वो टेक्सचर सा आ जाता है, विच आई लव. थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाला था जो डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बिकॉज एनीवेज टमाटर एंड दही वो अपना पानी छोड़ता ही, बट स्टिल
आप स्किप कर सकते हैं इससे। एंड देन मैंने 2 to 3 टीस्पून ऑफ दही डाला। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से और खट्टापन के हिसाब से जितनी खट्टी आपकी दही है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी दही इतनी खट्टी नहीं होती है तो मैंने 2 to 3 टीस्पून डाला। फिर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। Once all the keema is coated in the yogurt and the tomatoes turn mushy, you can close the lid and keep it for like sim for 2 to 3 minutes until the tomatoes get mushy. उतना करके फिर हम साइड बाय साइड यू हैव टू वॉश एंड सोक द राइस। ऑल दिस प्रोसीजर्स कैन बी डन इन द कुकर, बट कीमा कुकर में बहुत गल जाता है, इंस्टेंट पॉट में बहुत गल जाता है। आई हैव वन एक्सपीरियंस लाइक दैट, सो इट्स बेटर टू कुक इट हियर। सो मैंने आँच धीमी कर दी है और इसे ढक दिया है टू कुक। सो आई एम गोइंग हियर स्टेज बाय स्टेज। आप चाहे तो सब एक साथ डाल के भी बना सकते हैं, प्याज को अलग से फ्राई करने की जरूरत नहीं थी। यू कुड हैव पुट एवरीथिंग टुगेदर एक्सेप्ट फॉर द कीमा। कुकर में सब गला के उसके बाद कीमा को यहाँ पे सॉटे करके दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं एज यू लाइक, व्हिचएवर इज इजी। मुझे बर्तन धोना डिफिकल्ट लगता है, सो आई एम मेकिंग इट इन वन पॉट स्लोली। और पोटैटोज को मैंने पोटैटो वेजेस जैसे कट किया, एंड देन आई हैव स्लाइस सम कैरेट्स, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट सम green pepper and mutter, green peas. आप अपने हिसाब से whichever vegetable you think goes well with the keema, you can put all those. Some people do put cauliflower, broccoli, anything which you like. But I don't like cauliflower, broccoli, depending upon my mood in pulao. Otherwise, I do like sometimes when it's a tehri or something. Anyways, I'm not going to put it now. Just potatoes, carrots, green pepper, and green peas. That is what I have decided to put today in this keema pulao. फिर इसको भी थोड़ी देर ढक के पकाना है। I have sauteed the vegetables in the keema, but you don't have to do it. You can do it for 3 to 4 minutes. Otherwise, the vegetables are going to cook anyways with the rice. So I have taken 3 glass of rice with this glass, और फिर उसका डबल मैंने वाटर लिया, which is 3 + 3, 6 glasses of water. And I have washed and kept the rice to soak in water until this keema and veggies are cooked. I want that the frying or the roasted, flavor in the veggies. So that's why I am सॉटेइंग इट लाइक दैट। और पानी मुझे जब जब ऐड करना है ताकि नीचे से लगे ना, तो फिर आई एम यूजिंग द सेम राइस वाटर का पानी, बिकॉज आई डोंट वांट टू कैलकुलेट अगेन हाउ मच वाटर आई हैव टू ऐड, हाउ मच वाटर आई हैव poured इन द कीमा। सो उसकी वजह से मैं सेम वाटर ही यूज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये राइस एंड वाटर का कंफ्यूजन हमेशा चलता है। आपके साथ भी ये होता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी अदर इजी ट्रिक please do let me know that as well. याद रखें, there is bone in this keema and there is meat also, the chunk, so I have to cook that as well properly. तो इसलिए पानी डाल के वेजिस के साथ कीमा के साथ मैंने इसे थोड़ी देर और ढक के रख दिया, like for example 5 to 7 minutes. Because पुलाव बन रहा है, I have decided already, so I have put some pudina leaves and some chopped coriander leaves and some slitted green chilies. अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, तीखा खाने वाले ज़्यादा खा सकते हैं, डाल सकते हैं, और कम तीखा कम कर सकते हैं। पुदीना एंड मीट गोज रियली वेल, और पुदीना को थोड़ा बहुत पकाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो कच्चा पुदीना की फ्लेवर आती है। सो आई हैव पुट सम मोर वाटर from the same rice wala water, which the water that I have soaked rice in it, the same मैंने water डाला वापस से कीमा में, and then I have covered it and cooking it on a high to medium flame. जब ओपन करके देखा मैंने, वेजीज को पहले मैंने चेक किया, बिकॉज वेजीज अगर थोड़ी बहुत लाइक 80% भी कुक हो गए होंगे तो मे बी कीमा भी, सॉरी बोन्स भी ऑलमोस्ट कुक हो गए होंगे। सो फिर बाकी का बोन्स और बाकी का सब चीज़ आप राइस के साथ भी कुक कर सकते हैं। अगेन टेलिंग यू कैन कुक द नॉट राइस, यू कैन कुक, हाँ, आप इसे राइस में अलग से कुक करके भी, कीमा अलग से कुक करके, और दोनों को जैसे बिरयानी में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। बट अखनी अलग से बना के रख सकते हैं आप इसकी बोन और मीट चंक्स की, और फिर कीमा अलग से सॉटे करके उसे भी मिक्स कर सकते हैं ताकि आपको कीमा गलाने के लिए इतना टाइम ना लगे। तो मैंने 3 ग्लास राइस लिए थे, उसमें से 3 + 3 6 ग्लास वाटर डाले हैं, और सारे वाटर जो भी मैंने कीमा वेजिस को पकाने में यूज़ किया है, आई हैव टेकन दैट वाटर फ्रॉम द सोक्ड राइस वाटर। और उसके बाद क्योंकि चावल डालने के बाद मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा चेक करती हूँ राइस एंड वाटर का रेशियो, ये चाइनीज़ मेथड, वो स्पून लेवल राइस के ऊपर डाल के, तो वैसे ही मैं चेक कर रही हूँ जस्ट फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। और क्योंकि राइस डालने के बाद थोड़ा सा ना पुलाव में पानी जो है वो थोड़ा नमकीन होना चाहिए, इट शुड बी सॉल्टी, सो आई एम एडिंग सम मोर सॉल्ट, तभी वो कीमा और राइस का फ्लेवर वो बैलेंस होगा। And I am squeezing like half a lemon into this pulao. It's just half a lemon to balance out all the flavors, still giving you that tangy touch. अगर आपकी दही खट्टी ज़्यादा थी तो please skip this, और टमाटर खट्टा ज़्यादा था तो you can again skip this. So I have checked and that's it. मैंने उसे राइस बनाने को रख दिया है, and I'm going back to my laptop to check और कितने वीडियोस बाकी हैं। तो अभी मैं बस अपने लैपटॉप लेके आई हूँ चेक करने कि मैंने कितने वीडियोस अपलोड किए हैं। और ऐसा होता है ना कि मैं वीडियोस तो बना लेती हूँ, बट आई डोंट शूट इंट्रोज एंड आउट्रोज। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या इंट्रोज एंड आउट्रोज ज़रूरी है वो शूट करना, या वीडियो में ही मैं बोल दूँ आई एम फातिमा खान एंड पाकिस्तान और दिखेगा खाना। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अब बैठ के सबके इंट्रोज एंड आउट्रोज शूट करूँ, फिर उसे वीडियोज़ में जिन जिन डेट्स के हैं वो अपलोड करूँ, और या जो जैसे बन रहे हैं वैसे ही मैं करूँ। तो वही अभी मैं not able to decide because there's a lot of videos to edit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और आज का मिला के 11th हो जाएगा। तो सारी वीडियोस कैसे एडिट करूँगी, और कल भी मुझे काम है, कल भी मुझे जाना है। आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग और नॉट, बट दिस गाइज आर गोइंग टू ईस्ट हैम फॉर ईद शॉपिंग। आई वॉन्ट टू गो, लेट्स सी, बहुत चलना पड़ता है यार, फॉर बीट सेंट्रल लंडन और बीट ईस्ट हैम, ये सारी जगह मतलब शॉपिंग के लिए तो हमेशा, बट ये बहुत चलना पड़ता है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब क्या करूँ, बैठ के इंट्रो सब पर शूट करूँ। ये दो तो हो गए, तो 1 2 3 4, आई थिंक 4 या 5 इंट्रोज शूट करने हैं मुझे, नॉट 1 1 2 3 1 2 3 4, आई थिंक 4 शूट करने हैं इंट्रोज। इसलिए अच्छा होता है ना कि जब कैमरा ऑन हो उसी में बोल दो तो क्या हो जाता है कि चलो अब मतलब वो नहीं रहता कि अलग से शूट करना हो, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता ना। अब जैसे कि मेरा बच्चा है एंड माय हस्बैंड, समटाइम्स व्हाट आई डू व्हाइल कुकिंग, आई टॉक टू माय हस्बैंड एंड कुक, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, देन आई हैव टू डिटैच द ऑडियो और डू समथिंग अबाउट इट, फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। सो इसलिए आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या करूँ। ओके लेट्स सी, पहले जितने जल्दी वाली वीडियोज़ हैं, लेट मी सी, वो मैं कर देती हूँ एडिट। शूट तो कर रखे हैं बाबा, लेकिन एडिट करने में ना वक्त लग जाता है। इट्स 5:45 समझ लीजिए। ये लोग तो इफ्तार बाहर करेंगे, तो मैं अपने लिए इफ्तार कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना लेती हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जबकि वो लोग तरावी के बाद ही आके खाना खाएंगे, एंड मैं खाना बना लेती हूँ एंड देन आई कैन सिट टू एडिट। क्या बोलते हैं आप? राइट, आई थॉट कि मेरा बेबी सो रहा है तो मैं अभी कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि जब उठ जाते हैं ना तो एडिट करना मुश्किल हो जाता है। ही कीप सिटिंग और लैपटॉप पे काम करना, ही स्टार्ट्स डूइंग दैट। जस्ट थिंकिंग, क्योंकि खाना बनाना बड़ा आसान है उनके साथ, बिकॉज ही इज़ नाउ यूज टू सीइंग मी इन द किचन, बट ही इज़ नॉट दैट यूज टू सीइंग मी वर्किंग ऑन द लैपटॉप। मतलब ही इज़, बट क्या है कि वो बीच बीच में आ जाते हैं, और इनका टीम्स कॉल तो उफ, वो जैसे ही टीम्स का म्यूजिक जो होता है ना वो होता है, तो मेरा बेटा तो इधर उधर से भाग के पहुंच जाता है, एंड ही लाइक हेलो हेलो, जैसे कि टीम मीटिंग उन्हीं के साथ हो रही है। सो या लैपटॉप गैजेट्स आई थिंक एक्साइट्स हिम मे बी। ओके सो बट मैं खाना पहले बना देती हूँ, दैट एंड डू दैट, फिर मैं एडिट करने को बैठती हूँ। Alright, so चलो आपको खाना दिखाती हूँ फिर। The rice open and in a high flame for about 10 minutes, and then now I'm coming back and checking everything whether it's okay or not, क्योंकि ब्लब 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 साउंड आने लगता है तो मतलब कि ऑलमोस्ट हो गया है। तो फिर मैं बस थोड़ा ऊपर नीचे करके ढक के कीप द राइस फॉर दम फॉर अनदर 10 minutes, दैट्स इट। और फिर आपको कीमा पुलाव रेडी हो जाएगा। सो बस थोड़ा ऊपर नीचे किया मैंने, ऊपर नीचे, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, ऊपर नीचे किया मैंने, एंड देन दैट्स इट। आपको बस लिड क्लोज करना है, स्विच द फ्लेम टू लो एंड कीप इट फॉर दम। थोड़ी देर बाद मैंने ओपन करके देखा, देयर इज स्टिल सम वाटर दैट यू कैन सी ऑन द साइड्स। उसके बाद आई हैव पुट सम बारिस्टा दैट आई हैव लेफ्ट ओवर, और फिर वापस से ढक के मैंने इसे वेरी लो फ्लेम में छोड़ दिया फॉर अबाउट 10 to 15 minutes, एंड वॉला योर कीमा पुलाव वाज रेडी। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। इफ यू हैव ट्राइड दिस रेसिपी, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव अ बेटर रेसिपी देन दिस, प्लीज शेयर दैट एज वेल। आई लव कुकिंग, आई लव ईटिंग, आई लव एवरीथिंग अबाउट फूड। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed today's video. If you did, make sure you give it a big fat thumbs up, and do not forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon. Alright, so until my next video, this is Fatma Khan signing off. Take care, bye bye and salam. Bye.